Gallantry Award winners. Hi, I am Anisha and this is my presentation about the Gallantry Award winners. Let's start. Gallantry Awards have been instituted by the Government of India to honor the acts of bravery and sacrifice of the officers of the armed forces. These Gallantry Awards are announced twice in a year, first on the occasion of the Republic Day and then on the occasion of the Independence Day. Let me tell you the history of Gallantry Award. In 1832, the Order of Merit was launched by Lord William Bentinck, which was renamed as Indian Order of Merit. This was known as the most coveted Gallantry Award until Victoria Cross, the highest Gallantry Award of British Empire, was extended in India in 1911. The VC was awarded to 153 Indian and British soldiers of the British Indian Army and civilians under its command from 1857. These are the medals of the IMO and VC Award. However, the VC Award in India came to an end at the post-independence. After a short time, the Prime Minister Jawaharlal Nehru decided to give Gallantry Award for the ongoing conflict in Jammu Kashmir. Accordingly, in June 1948, it was decided to institute new Indian awards for gallantry. There are various types of Gallantry Awards. Let's take a look at them. Gallantry Awards are classified into two categories: Gallantry in the face of enemy, Gallantry other than in face of enemy. First category of Gallantry Awards comprises of the following awards: Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra. Second category of Gallantry Awards comprises of the following awards: Ashok Chakra, Kirti Chakra, Shaurya Chakra. These are the medals of the Gallantry Award. The PVC have been awarded 21 times, of which 14 were awarded posthumously and 16 arose from actions in Indo-Pakistani conflicts. Of the 21 awardees, 20 have been from the Indian Army and 1 have been from the Indian Air Force. The Grenadiers with 3 awards have received the greatest number of Paramveer Chakras. The various Gorkha Rifle regiments of the Indian Army have received 3 awards, with the 1, 8 and 11 Gorkha Rifle regiments each having 1 PVC recipient. Here are some award winners: Somnath Sharma, Jadunath Singh, Rama Raghoba Rane, Piru Singh, Karam Singh, Gurbachan Singh Salaria. श्री इमरान हुसैन टाक, उप निरीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। दिनांक 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्रीनगर के जकूरा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था, उसमें आतंकवादी होने की सूचना श्रीनगर पुलिस द्वारा भेजे जाने पर
पुलिस स्टेशन जकूरा और एसडीपीओ जकूरा की पूर्ण कमान में उप निरीक्षक श्री इमरान हुसैन टाक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र श्रीनगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी स्थापित कर दी गई। एक कार को रुकने का सिग्नल दिया गया, फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोलाबारी कर दी, जिससे उप निरीक्षक श्री टाक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए जवाबी गोलाबारी कर दी, जिससे आतंकवादी घायल हो गया। अपनी कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोलीबारी की, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया। भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और तत्काल चिकित्सा सहायता को मनाकर गोलीबारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चुनौती दी मानो कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए। आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नजदीक पहुंच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंकवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपने गंभीर जख्मों की वजह से वे शहीद हो गए। स्वर्गीय श्री इमरान हुसैन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनाज अख्तर। श्री अरशद खान, इंस्पेक्टर जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। श्री अरशद खान जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। दिनांक 12 जून 2018 को अनंतनाग जिले में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े एक फिदाइन आतंकी ने भीषण गोलीबारी करते हुए हमला कर दिया। थाना अनंतनाग में तैनात इंस्पेक्टर अरशद खान हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर चल रही गोलीबारी के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादी पर बेहद नजदीक से गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। आतंकी ने बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर पर ग्रेनेड फेंका और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीने में गोली लगने से वो बुरी तरह जख्मी हो गए एवं बाद में दिल्ली के एम्स अस्पताल में वीरगति को प्राप्त हुए। इंस्पेक्टर अरशद खान ने अनुकरणीय वीरता एवं अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अरशद खान की पत्नी श्रीमती नीलोफर बशीर एवं माता श्रीमती महबूबा खान। श्री बिलाल अहमद मागरे, विशेष पुलिस अधिकारी जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। श्री बिलाल अहमद मागरे बारामूला में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। 20 अगस्त 2019 को बारामूला के एक घर में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक संयुक्त कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लक्षित मकान में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने तथा आतंकवादियों को निरस्त करने के लिए श्री बिलाल अहमद मागरे ने स्वेच्छा से इस अभियान में हिस्सा लिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए श्री बिलाल अहमद निर्दोष नागरिकों को जब बाहर निकाल रहे थे, आतंकवादियों ने उन पर हथगोलों से हमला करते हुए अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने
आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया एवं एक आतंकवादी को निरस्त करने में बहुमूल्य योगदान दिया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अंततः वो राष्ट्रहित में शहीद हो गए। श्री बिलाल अहमद मागरे ने अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री बिलाल अहमद मागरे की माता श्रीमती सारा बेगम। There are a lot of people who sacrificed themselves in order to get India freedom. One of that major hero is Captain Vikram Batra. Everyone has some aim in their life to become something. Some fail and some succeed in achieving. For instance, the sake of India, Gandhiji sacrificed his life. Like Captain Vikram Batra, I also want to serve my motherland and make our country supreme. Great nation is a nation that respects the services of the hero. Thank you for watching.